चलो, in the last class we learned about this, right? What are the differences between mild to moderate exercise and severe exercise, right? So heart rate increases in both, we know that, and maximum it reaches up to 185 if you have to say one value, right? Then stroke volumes. What about the stroke volume we learned yesterday? Two things we learned. First is in trained athletes and in untrained person. What we learned? It is much more increase in a trained person, right, as compared to untrained person. And later on, it will not increase because it is having limits, right? The heart is having limits. So that's why later on, whatever increase in the cardiac output occurs, that is mainly because of the heart rate, right? So that's how it is going to be. And then the cardiac output increases in both, but in the severe exercises, that means we are increasing the intensity a lot, right? The stroke volume cannot compensate that, and that's why the heart rate are going to increase much. So contribution in increase in the cardiac output will be much more by the heart rate in the severe exercises, right? Then total peripheral resistance, mild to moderate weight is going to increase, and in the isotonic, what do you mean by isotonic? Example of isotonic? Swimming, walking, anything, right? And isometric. What we learn about in the isotonic, the total peripheral resistance is going to decrease. Why is it so? We're talking about severe exercises. That means anaerobic metabolism is also activated. Metabolic products are going to get released, right? And that's why what is going to happen? They will cause vasodilation, and that's why there is decrease in the total peripheral resistance. In case of isometric exercises, what is going to happen? The muscle is continuously squeezed, right? आपके आने वाले practicals में you are going to learn about the mososarcograph and hand grip dynamometer, right? One is isotonic exercise, one is isometric. In the isometric, we are going to learn about hand grip dynamometer. In that, we have to keep the dynamometer compressed. Okay, so in that the muscle is continuously contracted, right? And that's why what is going to happen? The total peripheral resistance, it depends on the lumen of the right arterioles mainly and other arteries also. But over here they are continuously contracted, so total peripheral resistance cannot decrease, rather it increases, right? Okay, and what will happen to the tissue pH? It will not change much in the mild to moderate exercise, but yes, definitely in the severe exercises, it is going to be acid or it is going to decrease. Main reason is lactic acid and CO2, which is again acid, volatile acid. Okay? Chalo. Next is, what are the changes in the blood pressure? Okay. You know about the systolic blood pressure, it is going to increase whether it is isotonic exercise and isometric exercise, right? And cause being sympathetic cardio acceleration, right? So क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ? Sympathetic में क्या होता है बच्चों? Heart rate increase होती है. What happens to the force of contraction? Increases, right? And that's why systolic pressure किस पे depend करता है? हमने पढ़ा है. We are learning about the blood pressure itself in the practicals, right? We learn what is the determinant of systolic blood pressure? किस पे depend करता है ये? Force of contraction of the heart, right? Systolic है ना? So it is because of the systole of the heart, right? अगर आपने बढ़ाया force of contraction of the heart, definitely systolic blood pressure increase करेगा, right? What about the diastolic blood pressure? It depends on, right, afterload या total peripheral resistance, right? So what is going to happen in the isotonic exercise? Carefully see over here. Isotonic exercises में mild कर रहे हो तो it is going to increase, right? But in the severe exercises it is going to decrease. Why? The reason is given below. क्या क्या हो रहा है यहाँ पे देखो? Sympathetic vasodilation is going to get activated. How is that possible? I'm talking about sympathetic and vasodilation. Local, right? Local sympathetic skeletal muscle जो भी work कर रहा है उसका vasodilation होगा. कैसे? Metabolites अलग है बच्चे. Vasodilation कैसे होगा? Sympathetic. Non-adrenaline क्या करता है बच्चे? Good. So there is exception. लिखो. Post-ganglionic sympathetic cholinergic fibers कहाँ पे होते हैं? Sweat glands पे, piloerector muscles plus
sweat glands and vessels of skeletal muscle. इसमें यूजुअली हम क्या पढ़ते हैं, सिंपैथेटिक में पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स कैसे होते हैं, एड्रिनर्जिक, राइट, बट यहाँ पे देयर आर एक्सेप्शंस. क्या होता है यहाँ पे, दे आर कोलिनर्जिक पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स. सिंपैथेटिक होने के बावजूद दे आर कोलिनर्जिक, एंड दैट्स व्हाई whichever muscle is contracting at that point, उसकी blood vessel is going to dilate. Okay? So that's why obviously बात है total peripheral resistance कम होगा. इसका रीजन आपको वाइवा में भी पूछा जाता है, right? And then metabolic theory, you know that, है ना, metabolic जो भी waste product, by products produce हो रहे हैं, they are going to cause vasodilation. Then the thermogenic, you learn that in the effect of temperature on the simple muscle twitch, क्या क्या हो रहा था, right? वहाँ पे भी हमने पढ़ लिया था, and that is going to cause vasodilation. In the isometric exercise, there is no chance of vasodilation, right? क्योंकि हम continuously muscle को contract कर रहे हैं, and the blood vessel is going to get squeezed, है ना, उसको dilate होने के लिए जगह ही नहीं है. So that's why the total peripheral resistance is going to increase continuously, and diastolic blood pressure also increases. Sympathetic vasoconstriction, that is going to occur, especially in the mild cases of the isotonic exercises. Mean arterial pressure, difference between two, है ना, माइल्ड में इंक्रीज होगा और सीवियर में डायस्टोलिक कम हो रहा है ना, तो मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या होता है बच्चों, इट्स अ एवरेज प्रेशर, है ना, डायस्टोलिक कम हो रहा है, राइट. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दैट इज गोइंग टू आल्सो डिक्रीज. आइसोमेट्रिक में इट इज कंटिन्यूअसली गोइंग टू इंक्रीज. सो सी ओवर हियर, एनारोबिक एंड एरोबिक एक्सरसाइज दिया हुआ है. अगर आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कर रहे हो, डेफिनेटली ऑक्सीजन का भी सप्लाई कम है, सो वी कैन से दैट इट इज अ पार्ट ऑफ एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, है ना. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो, एनारोबिक में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये लोअर एज जो है, दैट इज शोइंग और रिप्रेजेंटिंग द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, व्हाइल द अपर एज ओवर हियर, दैट इज गोइंग टू शो द दैट इज शोइंग द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. सो आप डिफरेंस देख सकते हो इन दोनों के बीच का, राइट. मीन आर्टेरियल प्रेशर, जैसे आपने सिवियर एक्सरसाइज की तरफ आप गए, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज. वी आर टॉकिंग अबाउट एन एरोबिक, राइट. एरोबिक में देखो क्या हो रहा है, एरोबिक में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, राइट, एंड सिस्टोलिक इंक्रीज हो रहा है. दैट्स व्हाट वी लर्न. चलो, नेक्स्ट इज ब्लड फ्लो ड्यूरिंग द एक्सरसाइज. वी लर्न दैट यस्टरडे, है ना, आप ही लोगों ने मुझे बताया था, है ना, 2 गुण जिंदगी के भूलना नहीं है, क्योंकि पूछते हैं, राइट. क्या बोला था हमने, रेस्ट में कितना होता है, 2 to 4 ml per 100 ग्राम ऑफ स्केलेटल मसल, राइट. अगर मैं पूछूं ओवरऑल परसेंटेज कितना होता है बच्चों, कितना परसेंट का कार्डियक आउटपुट आपके स्केलेटल मसल को जाता है, around 15%, right? Why is it so? क्योंकि स्केलेटल मसल का वॉल्यूम ज्यादा है, right? Okay. एक्सरसाइज के टाइम पे जो वर्किंग मसल है, only that muscle is going to get such a high cardiac output, which is going to be 20 times that of the resting condition. ठीक है? ये हमने कल भी पढ़ा था. ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है एंड आइसोटोनिक रिप्रेजेंटेशन, राइट. आइसोटोनिक में क्या होगा, आर्टेरियोलर डायलेटेशन, ओपनिंग ऑफ द कैपिलरीज, एंड दैट्स व्हाई increase surface area for the exchange. So it is a good thing, so that we can exchange the nutrient and oxygen from the capillary towards the tissue, as well as we can take the metabolic waste, right, from the tissues towards the capillaries. And what do you mean by ये क्या होता है, thoroughfare? I told you that capillary not exactly to be bypass. क्या होता है, कैपिलरीज आर स्क्वीज्ड. इसका मतलब ये नहीं कि कंप्लीट ऑब्लिटरेशन हो गया, माइंड यू, अदरवाइज स्कीमिया हो जाएगा, राइट. तो जितनी भी जगह होती है, तो फिर मतलब इन बिटवीन जितनी भी जगह है, उससे ब्लड फ्लो करने की ट्राई करता है, राइट. चलो, नेक्स्ट मैकेनिज्म्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. 3 थियरीज आपको पूछी जाती है ना. अगर पूछे मेटाबॉलिक थियरी, तो आपको लिखना पड़ेगा कि मेटाबॉलिक वेस्ट products, how they cause the vasodilation and how they help to get more blood supply to the muscle. ठीक है? So there are 3 theories: metabolic theory या chemical control theory बोल सकते हो, hormonal control theory and autonomic control theory, right? Metabolic base में हमने कल पढ़ा था एक चीज, क्या, Lewis P factor. कौन बताएगा क्या होता है? हाँ, right. So this is combination of 3 things: potassium, adenosine, lactic acid. ठीक है? That causes pain as well as fatigue, right? And pain का neurotransmitter पूछा तो mainly substance. ठीक है? Okay. Then temperature increase करने से भी vasodilation
डायलेशन होता है, आप ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं इस सबको, राइट? हार्मोनल थियरी में एड्रेनलिन दैट इज गोइंग टू एक्ट ऑन द बीटा रिसेप्टर्स एंड ब्लड फ्लो की बात करें तो हम दोनों कंसीडर करेंगे क्या, हार्ट का भी एंड वेसल्स का भी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम दैट वी आर लर्निंग ओवर हियर. सो आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, कार्डियक आउटपुट में मेनली फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन लिखना पड़ेगा, हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम किसमें क्या बढ़ता है डिपेंडिंग ऑन फॉर हाउ मच मार्क्स इट इज बीइंग आस्क्ड. रीडिस्ट्रीब्यूशन ये कल पढ़ा था, क्या होता है, जिसको नहीं चाहिए उससे लेके जिसको चाहिए उसको दे दो. एग्जाम में क्या होता है, आपके पेन खत्म हो जाते हैं, कहीं कहीं सो के उठ के आ जाते हैं, है ना, पेन भूल जाते हैं घर पे कि एग्जाम देने आए थे, तो क्या करते हैं, जिसके पास एक्स्ट्रा होता है उसका ले लो, ठीक है, टेम्पररी, बाद में देते भी है, ठीक है. सो ऐसी बॉडी करती है, व्हाट आई टोल्ड यू, द बॉडी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द इकोनॉमी, राइट? सो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जहां पे जिस सिस्टम को अभी ब्लड सप्लाई उतना नहीं चाहिए उससे हम ले लेते हैं, राइट? उसका ब्लड सप्लाई हम कम करेंगे, और जिसको भी चाहिए दैट मींस स्केलेटल मसल व्हिच आर वर्किंग राइट नाउ, वी आर गोइंग टू गिव दैट ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द स्केलेटल मसल. क्योंकि वॉल्यूम तो आप चेंज करने से रहेगा, 5 लीटर कार्डियक आउटपुट है, वो ब्लड फ्लो उतना ही रहेगा, राइट? द ब्लड वॉल्यूम इज नॉट गोइंग टू चेंज ड्रास्टिकली, राइट? सो दैट्स हाउ दिस इज द मैकेनिज्म बाय व्हिच वी आर गोइंग टू डाइवर्ट द ब्लड टुवर्ड्स द वर्किंग स्केलेटल मसल. क्या क्या है इसके हाइलाइट्स, रीनल ब्लड फ्लो देखो 80% तक कम होता है, 80% तक. एंड इफ यू डू प्रोलॉन्ग सिवियर एक्सरसाइजेस what can happen, it can impair the renal function and that may cause proteinuria, right? That may cause proteinuria, so that's why prolonged strenuous exercises are contraindicated. ठीक है, आजकल वो आया है ना HIIT, HIIT क्या होता है, हाई इंटरवल इंटेंस ट्रेनिंग, ठीक है, बट इट इज इंटरवल इंटेंस ट्रेनिंग, प्रोलॉन्ग कंटिन्यूअस करने के लिए मना करते हैं, राइट? व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस. नेक्स्ट, थर्मोरेगुलेशन, थर्मोजेनिक वेसोडाइलेशन, that also occurs, that we learn already in the practicals, right? That happens in the prolonged exercises. The heat is going to get generated simultaneously with the production of energy. Sympathetic and metabolic vasodilation of coronary and cerebral blood flow vessels or blood vessels to maintain adequate supply. What do you mean by this? हम ना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में एक चीज पढ़ते हैं, बेस्ट ऑटो रेगुलेशन. किसका होता है बेस्ट ऑटो रेगुलेशन? एंड ऑटो रेगुलेशन इज एब्सेंट. 2 क्वेश्चन एक पक्का आता है, बताओ बेस्ट ऑटो रेगुलेशन. ऑटो रेगुलेशन का क्या मतलब होगा बच्चों? ऑटो रेगुलेशन क्या समझ में आ रहा है? अपने आप रेगुलेट कर रहा है ना? आपको भूख लगी, कितना खाना है आप डिसाइड करोगे, मैं नहीं डिसाइड करूंगी, राइट? इंडियन सिनेरियो में ऐसा होता नहीं है, तो गेस्ट के घर जाते तो वो डिसाइड करते हैं कि कितना आप खाओ, बट ऐसा होता नहीं बॉडी, ठीक है? बॉडी ऑर्गन्स खुद डिसाइड करते हैं कि उनको कितना ब्लड चाहिए. सो हु इज द बेस्ट, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ बेस्ट ऑटो रेगुलेशन? हार्ट एंड ब्रेन, द ब्लड फ्लो ऑफ दीज टू, है ना? सो हेल्दी कंडीशन में बात करें, राइट? सो जितना ब्लड चाहिए वो अपने आप ऑटो रेगुलेट कर लेता है विद द हेल्प ऑफ ऑल दोस थियोरीज दैट वी लर्न, ठीक है? देन one more question I asked, auto regulation is absent in, हाँ जी, last bench, third girl, बताओ. So auto regulation is absent in skin and lungs, ठीक है? skin and lungs. So lungs में कितना ब्लड जाएगा कौन डिसाइड करता है? राइट वेंट्रिकल, ठीक है? They themselves do not decide how much blood is going to come to the lungs, ठीक है? Adipose tissue में क्या होगा जब एक्सरसाइज करते हो तो blood flow is going to increase, so lipolysis is also going to increase and that's why it helps. But lipolysis होने के लिए कौन से टाइप की एक्सरसाइज चाहिए? माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर? फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के लिए क्या जरूरी है बच्चे? अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हो पाएगी नहीं. सो माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइजेस में ही होता है. सो अगर फैट रिड्यूस करना है तो बेस्ट एक्सरसाइजेस कौन सी होगी? एरोबिक एक्सरसाइजेस, ठीक है? सो स्लो पेस पे जो एक्सरसाइजेस होती है जैसे वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, ब्रिस्क वॉकिंग बोलते हैं हम, राइट? सो इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन? द लाइपोलाइसिस विल बी एनहांस्ड, ठीक है? सो दैट्स व्हाई वी से कि जिसको भी वेट लूज करना है या फैट लॉस करना है उनके लिए एरोबिक एक्सरसाइजेस आर द बेस्ट, ठीक है? सो एक डायग्राम देख लो छोटा सा यहाँ पर, देखो कार्डियक आउटपुट लिखा हुआ है
25 liters over here and 5 liter. That means ये वाली condition जो है वो resting condition है, and this condition is in the during heavy exercise, right? So cardiac output will change, right? Then how the redistribution is going to take place? Now we already learned about the skeletal muscle. Resting condition में it is going to be 15 to 20%, है ना? ओवरऑल बॉडी की स्केलेटल मसल का मैं बात कर रही हूँ, राइट? बट जब मैं बात करूंगी ओनली 100 ग्राम स्केलेटल मसल की, देन इट विल बी 2 to 4 ml, राइट? दिस इज गोइंग टू चेंज अराउंड 80 to 85%, a lot more change, राइट? देन यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 15% था एंड यहाँ पे इसका 3 to 4%, दैट मीन्स इट इज मेंटेनिंग इट्स ब्लड फ्लो, है ना? किसका 3 to 4% है? 25 liters का 3 to 4% and 5 liters का 15%. That means यहाँ पे auto regulation is maintained. ठीक है? यहाँ पे किडनी का देख सकते हो, resting condition में it was 20%, but it decreased up to 10 times, right? And that may cause proteinuria. यहाँ पे देख सकते हो 4 to 5%, किसके लिए? But 4 to 5% of 25 liters. क्यों ऐसा हुआ? It is doing more work, right? So more nutrients you have to supply, है ना? काम ज्यादा करवाना है तो सैलरी भी ज्यादा देनी पड़ेगी, right? Next, blood volume. हमने दो चीजें पढ़ी थी कल, effective blood volume and blood volume, है ना? Initially blood volume बोलते हैं तो overall blood volume increase हो जाता है, right? But अगर effective blood volume पूछे तो वो कम हो जाता है. That will be your question, right? कि यही पूछते हैं effective blood volume को क्या होता है. देखो जो नॉर्मल चीज है वो पीयूई कोई पूछेगा, वो पता है सबको आती है ना? सो वही पूछेंगे जिसमें आप फंस सकते हो, राइट? सो ब्लड इफेक्टिव ब्लड वॉल्यूम इज गोइंग टू डिक्रीज. वी लर्न दैट कैपिलरी डायलेटेशन होती है एंड फिल्ट्रेशन इज गोइंग टू इंक्रीज, परमेबिलिटी इज गोइंग टू इंक्रीज, सो प्लाज्मा विल मूव इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, राइट? एंड देयर आर सम ऑस्मोटिकली एक्टिव मेटाबोलाइट्स व्हिच आर कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस्ड इन द टिश्यू, राइट? दे आल्सो ड्रैग द वाटर, है ना? Then the evaporation and sweating that causes loss of the blood volume in the severe exercises, right? अच्छा, respiratory changes पढ़ते हैं. क्या respiratory system का aim है? Cardiovascular का aim क्या था बच्चों? किसी को याद है? हाँ, basically increasing blood flow, है ना? And thereby increasing the nutrient and oxygen supply. यहाँ पे क्या है मेन? ऑक्सीजन पहुंचाना है और कार्बन डाइऑक्साइड जो भी प्रोड्यूस हो रहा है एंड मेटाबॉलिक फेज वो सारे वोलेटाइल कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज द एसिड, है ना? वोलेटाइल एसिड, वो हमें रिमूव करना, ठीक है? ये तो आपको सबको पता है क्या क्या होता है मेनली. ओवरऑल ओवरव्यू देख लो. इंक्रीज इन द ऑक्सीजन अपटेक, इंक्रीज इन द पल्मोनरी वेंटिलेशन एंड वी लर्न ऑलरेडी द OHDC. क्या था? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व. हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर इंक्रीज से, पीएच डिक्रीज से 2-3 बीपीजी जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है? हाँ, राइट शिफ्ट. इट इज गुड और बैड? गुड. क्यों? क्योंकि दैट डिक्रीजेस द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टुवर्ड्स ऑक्सीजन. एफिनिटी मतलब अट्रैक्शन कब हुआ तो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इज गोइंग टू इंक्रीज, है ना? सो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इज गोइंग टू इंक्रीज फ्रॉम द कैपिलरी टुवर्ड्स द टिश्यू, तो टिश्यू को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा व्हिच इज रिक्वायर्ड, ठीक है? Now there are 4 stages of ventilation, right? Stage 1, 2, 3, 4. Now what is the stage 1? Remember that in the stage 1 all these things are going to get stimulated with the help of psychic and proprioceptive stimuli. अब psychic stimuli मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा होगा feed forward stimulation. क्या होता है? हाँ, आप एक्सरसाइज का सोचते हो कि अभी मैं एक्सरसाइज करने वाला हूँ एंड यू नो दैट यू आर गोइंग टू डू इट. अल्टीमेटली योर हार्ट रेट इंक्रीजेस बिफोरहैंड, इवन बिफोर यू स्टार्ट डूइंग द एक्सरसाइजेस, ठीक है? दैट इज फीड फॉरवर्ड, है ना? ये कैसे टाइप का है? क्या बोलते हैं हम इसको? आपने एक फीडबैक पढ़ा होगा और फीड फॉरवर्ड पढ़ा होगा, है ना? फीडबैक में क्या था? नेगेटिव रेगुलेशन. सो पहले आपको स्टिमुलाई चाहिए होता है, राइट? फीडबैक करने के लिए. बट फीड फॉरवर्ड में क्या है? हाँ, even before you have the stimuli, even if you just think of it, then also it is going to get stimulated, right? So psychic stimuli and proprioceptive stimuli in the joint. Proprioceptive तो तभी आएगा जब आप start करोगे movement, right? So that is going to be your stage 1. Stage 2 में linear and progressive increase in the pulmonary ventilation, right? Then stage 3 में steady state.
क्या होता है स्टेडी स्टेट अभी देखेंगे. स्टेडी स्टेट से क्या समझ में आ रहा है? देयर इज समथिंग सच एज प्लेटू, राइट? प्लेटू आ जाता है. एक डायग्राम दिखाऊंगी, उससे पता चल जाएगा. एंड स्टेज 4 इज टर्मिनेशन, राइट? इमीडिएट डिक्रीज इन द वेंटिलेशन. ये देखो डायग्राम देखो. स्टेज 1 and 2 हम इंक्लूड करेंगे इन दिस एडेप्टिव फेज. स्टेज 1 and 2 combinedly called as adaptive phase, right? Stage 3 is known as steady phase and stage 4 is known as recovery phase. Now you can see over here what is happening. Over here you begin the exercise. ये वाला resting condition था. यहाँ पे आपने begin किया. हमने calculate किया था total body oxygen consumption, है ना? कितना आया था? 250 ml per minute. Calculate किया था हमने, right? कैसे calculate किया था? हमने arterial blood sample लिया and venous blood sample लिया. 19 आया था, 14 आया था, डिफरेंस आया था 5. याद है किसी को? है ना? सो उसके अकॉर्डिंग ये कितना था? पर 100 ml था. उसका हमने 5 लीटर्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया. सो हमें कितना मिला था? अराउंड 250, राइट? सो हमने जब स्टार्ट की एक्सरसाइज, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकंड फेज? द ऑक्सीजन, द पल्मोनरी वेंटिलेशन इज कंटिन्यूअसली गोइंग टू इंक्रीज. पल्मोनरी वेंटिलेशन इंक्रीज हुआ तो ऑक्सीजन कंजम्पशन भी इंक्रीज हुआ, राइट? होना चाहिए था ऐसे कुछ, राइट? बॉडी की डिमांड ये है, जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना, ये बॉडी की डिमांड है. बट उस डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं है, राइट? यू कैन सी देयर इज सम गैप ओवर हियर. ठीक है? तो हम गैप किससे भरते होंगे? ऑक्सीजन तो प्रोवाइड करना है ना? अभी सपोज करो आपको कहीं पे फॉर्म भरना है, राइट? आपके पास पैसे नहीं है, बट आपके पास एक फ्रेंड है जो जिसके पास है, एक्स्ट्रा मनी है. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू एट दैट टाइम? यू आर गोइंग टू बोरो दैट, राइट? उस बोरो को ही ऑक्सीजन का भी सेम होता है. अब ये लंग्स उतना वेंटिलेशन सडनली इंक्रीज नहीं कर पा रहे, राइट? सो हम क्या करते हैं? तब तक ऑक्सीजन बोरो करते हैं. कैसे बोरो करेंगे? विल लर्न दैट. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी व्हाट आर द स्टोर्स ऑफ ऑक्सीजन. आरबीसी में हीमोग्लोबिन है ना? हमने पढ़ा था देयर इज मायोग्लोबिन आल्सो एंड पावर टू एक्सट्रैक्ट द ऑक्सीजन, है ना? टिश्यू की पावर होती है एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, राइट? 19 ml आ रहा था, वो सिर्फ 5 ml ले रहा था, राइट? कंज्यूम कर रहा था. बट जब जरूरत ज्यादा है तो बोरो कर लेगा ज्यादा, राइट? ऐसे करते हो ना, एग्जाम आती है, फॉर्म भरने होते तो ज्यादा पैसे मंगवा लेते हो आप घर से कि ये करना है, वो करना है ना, फॉर्म भरने. पापा मम्मी से यही करते हो ना? सेम आपकी बॉडी भी करती है. बट दैट इज बोरोड मनी, जो आपने फ्रेंड से लिया था, है ना? आपको रीपे करना होगा, राइट? बट यू कैन नॉट डू दैट एट दैट पॉइंट. जब आपके पास होंगे, घर जाओगे, दोबारा से लोगे, तब आप रीपे करोगे, राइट? सो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज में, स्टेडी स्टेज में आप क्या करते हो? बोरो करते हो. और उसी फेज को, इस डेफिसिट को बोलते हो आप ऑक्सीजन डेफिसिट. आपके पास जो डेफिसिट था ऑक्सीजन का, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज ऑक्सीजन डेफिसिट. नीड, जो स्ट्रेट लाइन है, दैट इज शोइंग द नीड ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द बॉडी. बट होता वेंटिलेशन ऐसे है, कर्व लाइन आती है, राइट? एंड दिस इज ऑक्सीजन डेप्थ. ना होता क्या है, जब आप एक्सरसाइज स्टॉप करते हो, सडनली क्या होना चाहिए था? ये ऐसे ड्रॉप होना चाहिए था वेंटिलेशन, बट हुआ नहीं. क्या हुआ? देयर इज अगेन स्लो एंड स्टेडी डिक्रीज इवन आफ्टर स्टॉपेज ऑफ एक्सरसाइज, राइट? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपको रीपे भी तो करना है, राइट? मायोग्लोबिन को भी तो ऑक्सीजन देना है, राइट? सो इवन आफ्टर द सेशन ऑफ एक्सरसाइज, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? पल्मोनरी वेंटिलेशन रिमेन्स समवॉट हायर as compared to the resting condition. ठीक है? क्यों? क्योंकि मायोग्लोबिन को दोबारा से ऑक्सीजन देना है, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन देना है, राइट? और जो भी डेफिसिट था बॉडी में और टिश्यूज में, उसको आपको रीपे करना है, राइट? सो ये दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रेसिपी में, हमेशा पूछे जाते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीजन डेफिसिट एंड व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीजन डेप्थ? सो बता पाओगे, राइट? सो वही सेम चीज लिखी हुई है जो हमने अभी समझी, राइट? एडेप्टेशन फेज होती कितनी देर तक है? 2 to 4 minutes. First 2 to 4 minutes when you start the exercise, right? Then oxygen consumption increases linearly. Linearly मतलब यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि जितना intense exercise कर रहे हो उतना आपका pulmonary ventilation बढ़ेगा और oxygen consumption भी बढ़ेगा, right? Then it is not talking about the pulmonary ventilation. It is talking about the oxygen consumption, right? And the difference between oxygen intake of the body and during the early stage of steady state, that is known as oxygen deficit. जो भी उन दोनों के बीच का डिफरेंस था, that is known as oxygen deficit. स्टेज 3 में क्या हुआ? स्टेडी फेज. स्टेडी का मतलब ही समझ में आ रहा है कि वहां पे प्लेटू होता होगा, राइट? सो यहाँ पे क्या होता है? VO2 max reaches to the plateau.
इसके बाद अब आप और ज्यादा चाहे जितना ही इंटेंसिटी बढ़ाओ, आप क्या नहीं कर सकते, VO2 को और नहीं बढ़ा सकते, राइट? जो आपका पल्मोनरी वेंटिलेशन है और ऑक्सीजन का आपका इंटेक है उसको और नहीं बढ़ा सकते, उसकी भी एक लिमिट है, राइट? सो दैट रीचेस टू द प्लेटो, and that is why that VO2 max reaches to plateau, and that's why it is known as steady state. Plateau phase of oxygen consumption, you can say that, right? Steady phase of the oxygen consumption अगर कोई पूछता है, you can write in a one word, that is a plateau phase of oxygen consumption, which is stage 3, right? And VO2 will be maximum over here. Then recovery phase में क्या होगा? Stage 4 is the recovery phase, है ना? उसमें क्या कर रहे हो आप? There is extra amount of oxygen is consumed. मतलब क्या था कि रेस्टिंग कंडीशन में 250 ml ही चाहिए आपको, बट स्टिल आप 250 से ज्यादा ले रहे हो, क्यों? हाँ, डेप्थ को रीपे करने के लिए. सो दैट इज नोन एज ऑक्सीजन डेप्थ, राइट? एंड अमाउंट बाय व्हिच द ऑक्सीजन कंजम्पशन एक्सीड द बेसल कंजम्पशन. ठीक है? रेस्टिंग कंजम्पशन ऑब्वियसली जो स्टेडी स्टेट है उससे तो कम ही होगा, बट बेसल से ज्यादा होगा, राइट? जितना BMR था या जितना बेसल कंजम्पशन था उससे ज्यादा होगा, राइट? एंड the oxygen depth is seen to be equal to oxygen deficit. जितना लिया था उतना ही दोगे ना, है ना? ज्यादा प्यार होगा तो ज्यादा पैसे दे दोगे, ठीक है? फिर वो डिप्रिसिएशन वैल्यू में काउंट हो जाएगा. एनीवेज, चलो आगे बढ़ते हैं. मैकेनिज्म ऑफ इंक्रीज इन द पल्मोनरी वेंटिलेशन. फर्स्ट फेज में हमने पढ़ा था, स्टेज 1 में क्या? टू थिंग्स, साइक्लिक स्टिमुलस, है ना? सेरेब्रल कॉर्टेक्स, कॉर्टिकल कंपोनेंट आपका होता है एक्सरसाइज में. yesterday also I told you. So that is anticipatory hyperpnea. Feed forward, right? Just now we discussed. Anticipatory change हो रहा है. Hyperpnea का क्या मतलब होता होगा? हाँ? देखो, there is two things, hyperventilation and hyperpnea. दोनों में डिफरेंस क्या है? आपने जो बताया that is hyperventilation. Ventilation, ठीक है? Ventilation आप किस टर्म्स में बोलते हो? जब आप वेंटिलेशन बोलते हो तो आप कार्बन डाइऑक्साइड का वॉश आउट देखते हो, ठीक है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? यहाँ पे मैं हाइपरपनिया देख रही हूँ, हाइपरपनिया बोल रही हूँ, दैट मींस आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ रेट एंड डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन, ठीक है? रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ इज गोइंग टू इंक्रीज ओवर, ठीक है? देन यहाँ पे क्या है? प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट्स, क्या मतलब हुआ? जॉइंट की मूवमेंट करोगे, वहां पे प्रोप्रियोसेप्टर्स हैं, राइट? रिसेप्टर्स आपने CNS में पढ़ रखे हैं. जब भी उनकी मूवमेंट होगी, दे आर आल्सो गोइंग टू गिव द स्टिमुलेशन टू द रेस्पिरेटरी सेंटर्स, है ना? रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में आप ये सारा चीज पढ़ोगे, उसको स्टिमुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू गिव द इंपल्सेस टू योर रेस्पिरेटरी मसल्स. वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जल्दी जल्दी, राइट? अगर जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो रेट एंड डेप्थ बढ़ जाएगी. केमिकल मैकेनिज्म 1000 बार पढ़ चुके हैं आप तक, है ना? क्या होता है? एलिवेशन ऑफ ब्लड लैक्टेट लेवल्स या मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स, है ना? क्यों होते हैं और कब होते हैं? क्योंकि एरोबिक से हम एनारोबिक की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, राइट? एंड दैट्स व्हाई दिस इज गोइंग टू हैपन. एंड दिस at which degree of exercise this is going to happen, that degree is known as anaerobic threshold, right? That degree of exercise is known as anaerobic threshold. अगर कुछ याद ना आए तो वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना 2 बार एग्जाम में, ठीक है? कि पूछा क्या गया हुआ. एनारोबिक थ्रेशोल्ड बताया ही जा रहा है उसके वर्डिंग्स में. थ्रेशोल्ड है जब एरोबिक से एनारोबिक में शिफ्ट हुआ मेटाबॉलिज्म, है ना? हम एक्सरसाइज की बात करें तो दैट डिग्री ऑफ एक्सरसाइज वेयर दिस मेटाबॉलिज्म शिफ्ट फ्रॉम एरोबिक टू एनारोबिक, दैट वी आर गोइंग टू कॉल इट एज एनारोबिक थ्रेशोल्ड, राइट? ओके. Arterial PO2 and PCO2 mostly remain constant during the exercise. यहाँ पे एक वर्ड है एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी ड्राइव. एक्स्ट्रा किसके अकॉर्डिंग ये एक्स्ट्रा है? बेसल से एक्स्ट्रा, ठीक है? जब एक्सरसाइज करते हो तो एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी ड्राइव आ रही है आपको, वो किसके थ्रू आ रही है? बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ठीक है? ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, है ना? 250 ml से बढ़ जाएगा अप टू 4 लीटर्स तक, राइट? पल्मोनरी परफ्यूजन भी इंक्रीज हो जाएगा. आई टोल्ड यू दैट लंग्स कैन नॉट डिसाइड देयर ओन ब्लड फ्लो, है ना? ऑब्वियसली कार्डियक आउटपुट बढ़ा है तो लंग्स का भी परफ्यूजन बढ़ेगा, है ना? वेंटिलेशन बढ़ेगा तो VQ रेशियो ऑलमोस्ट इट रिमेन्स सेम, ठीक है? क्योंकि दोनों बढ़ रहे हैं ना, न्यूमरेटर भी बढ़ेगा, डिनोमिनेटर भी बढ़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या सेम रहेगा? VQ रेशियो, ठीक है? ये इंक्रीज होता है ऑलमोस्ट 6 टाइम. ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इंक्रीज होगा. कैसे ट्रांसपोर्ट इंक्रीज होगा? परफ्यूजन फास्टर हो रहा है ना?
परमानेंट जितना हीमोग्लोबिन आना चाहिए था टुवर्ड्स द टिश्यू उससे कहीं ज्यादा आ रहा है ना. सो ब्लड भी जितना आना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा आ रहा है. सो ट्रांसपोर्ट भी इंक्रीज कर रहे हैं हम, है ना. एंड इंक्रीज इन द अल्वेलर एंड आर्टेरियल PO2 डिफरेंस. क्या मतलब हुआ इसका? टिश्यू ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहा है ना ऑक्सीजन. ऑब्वियसली उतना परफ्यूजन, उतना जो डिफ्यूजन होता है वो नहीं हो पाएगा, राइट. सो अल्वेलर का वेंटिलेशन वो तो सेम रहेगा एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, है ना, 21%, राइट. बट जो डिफ्यूजन हो रहा था उसमें थोड़ा सा तो डिफरेंस होगा ही, राइट. उतना फास्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि परफ्यूजन इज 6 times मोर, ठीक है. सो दैट्स व्हाई देयर इज डिफरेंस. एक ग्रेडियंट बढ़ जाता है, राइट. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द PO2 in the alveoli and the arteries, right. And then the pulmonary diffusion capacity. ये फंडा जो है ना ए ग्रेडियंट का, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा जब आप पढ़ोगे डिफ्यूजन लिमिटेड एंड परफ्यूजन लिमिटेड गैसेस, है ना. एनीवेज चलो, इंक्रीज इन द pulmonary diffusion capacity, but that will not increase that much as the perfusion is increasing. चलो, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं किसमें? OHDC में, ठीक है. सो क्या हो रहा है बेसिकली? राइट शिफ्ट. अभी डिस्कस किया, राइट शिफ्ट होगा तो अट्रैक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन टुवर्ड्स ऑक्सीजन इज गोइंग टू डिक्रीज, और उसकी वजह से वो ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करेगा टिश्यू के टुवर्ड्स. ओके, नाउ ट्रेनिंग का इफेक्ट क्या क्या होता है? एक्सरसाइज के इफेक्ट तो देख लिए. अगर हम कंटिन्यूअसली एक्सरसाइज फॉलो करते हैं, है ना, रिपीटेड बाउट्स करते हैं, सो क्या होगा? ट्रेनिंग का एक्सरसाइज. फटीग हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था. टेम्पररी एंड रिवर्सिबल डिक्रीज इन द वर्किंग कैपेसिटी, राइट. एंड कॉजेज ऑफ फटीग लिख पाओगे आराम से, है ना. कल डिस्कस किए थे. ब्लड फ्लो के बारे में बताओ, क्या क्या हो रहा है, वो क्या क्या प्रोवाइड कर रहा था वो नहीं कर पाएगा, क्या क्या लेके जा रहा था वो उतना क्विकली नहीं ले पाएगा, राइट. देन वी आल्सो डिस्कस न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस फ्री दैट इज गोइंग टू रिलीज, मेटाबॉलिक वेस्ट, राइट. उसमें लिवर स्पीड फैक्टर दैट आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द फटीग, right. All these things are going to contribute to the fatigue. Now fitness is inversely proportional to the oxygen deficit and onset of anabolic mechanism. Can I say that the anaerobic threshold is increased? I can say that ना. जब आप ट्रेनिंग करते हो कंटिन्यूसली तो क्या होता है, आपका एनारोबिक जो थ्रेशोल्ड होता है, जहां मतलब क्या हुआ कि एरोबिक से एनारोबिक में जब शिफ्ट हो रहा था, वो डिग्री ऑफ एक्सरसाइज दैट इज गोइंग टू इंक्रीज, है ना. पहले आप 5 मिनट में क्या हो रहा था, आपका एनारोबिक एक्टिवेट हो पा रहा था क्योंकि टिश्यू का इतना कैपेसिटी नहीं था कि वो उतना ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर पाए, राइट. उतना एंजियोजेनेसिस नहीं हुआ था कि उतना ब्लड सप्लाई वो टिश्यू को प्रोवाइड कर पाए. धीरे धीरे सारे चेंजेस होंगे बॉडी में एंड दैट विल कॉज इंक्रीज इन द ऑक्सीजन डिलीवरी. तो उससे क्या होगा, ज्यादा ऑक्सीजन टिश्यू को मिल रहा है, सो ज्यादा देर तक वो एरोबिक मेटाबॉलिज्म पे काम करेगा, राइट. सो उसका एनारोबिक थ्रेशोल्ड जो है वो बढ़ जाएगा. तो जितनी ज्यादा फिटनेस उतना डिलेड एनारोबिक थ्रेशोल्ड, राइट. सो ये ऑनसेट लिखा हुआ है. ऑक्सीजन डेफिसिट के बारे में भी सेम. जितनी ज्यादा फिटनेस, ऑक्सीजन तो ज्यादा दे पा रहा है ना, तो ऑक्सीजन डेफिसिट कम, राइट. वार्म अप और ट्रेनिंग, उसका एम क्या होता है? Beside all those things that you learn one more new thing, that is anaerobic threshold. Threshold increase हो रहा है, मतलब लेट आएगा ऑनसेट, ठीक है. And that is what improves the muscle ability to maintain the tension for longer while, and that is nothing but your endurance, ठीक है. Okay. मोटा समरी है, क्या क्या हो रहा था रेस्पिरेटरी सिस्टम में. वेंटिलेशन इंप्रूव हो रहा था, lung capacities and volumes they are going to increase, right. Arteriovenous oxygen difference is going to increase and oxygen uptake is going to increase. Cardiovascular system में क्या क्या हो रहा था, heart rate is going to decrease with the training, है ना, as compared to the untrained person. ये लिखा हुआ है, ठीक है. हम ट्रेनिंग का इफेक्ट पढ़ रहे हैं. So vagal tone increase होगी, that also reduces the heart rate and sympathetic tone इनका कम हो जाएगा. Stroke volume, that's why we learn resting bradycardia in the trained person, है ना. एथलीट्स में हम रेस्टिंग ब्रैडीकार्डिया देखते हैं. कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा मेनली बिकॉज ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम, राइट. एंजियोजेनेसिस होगा, कल पढ़ा था हमने. एंजियोजेनेसिस मतलब नए वेसल्स फॉर्म होने लगते हैं, राइट. एंड इंप्रूव्स द कोरोनरी परफ्यूजन आल्सो. व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द कोरोनरी परफ्यूजन बच्चों? यहाँ पे क्या हो रहा था, जब हार्ट रेट आप बढ़ाते हो ना, तो क्या होता है, डायस्टोलिक टाइम कम होता है. और दिस इज द एक्सेप्शन
दैट सारे टिश्यूज को ब्लड सप्लाई मैक्सिमली मिलता है सिस्टोल में, बट हार्ट को मिलता है डायस्टोल में, क्योंकि ब्लड वेसल्स कंप्रेस हो जाती है ड्यूरिंग द सिस्टोल, है ना, स्क्वीज हो जाती है, किसकी, कोरोनरी ब्लड वेसल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो उसको डायस्टोल में मिल रहा था। अगर बहुत ज्यादा हार्ट रेट बढ़ाओगे तो क्या होगा, डायस्टोल में ब्लड सप्लाई कम जाएगा, तो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम हो जाएगी, तो ओवरऑल कार्डियक आउटपुट भी कम होगा, ठीक है। अगर मैंने कहा कि हार्ट रेट में बढ़ाती गई तो क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि कोरोनरी परफ्यूजन कम होने लगेगा, राइट। सो आपकी कैपेसिटी ऑफ द कार्डियक आउटपुट वो भी डिक्रीज होना जाएगी, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन भी डिक्रीज होता जाएगा। अगर ये मैं पूछूं पैथोलॉजी होती है आपकी किसमें होता है, जिसमें परफ्यूजन कम होने से प्रॉब्लम हो जाती है, एनी एग्जांपल? हाँ, क्लॉट बन गया। और किसमें हो सकता है बच्चे? शॉक की कंडीशन में क्या होता है बच्चों? और वीनस रीजन हाई नहीं है, राइट, तो सिम्पैथेटिक सिस्टम बढ़ जाता है, सिम्पैथेटिक सिस्टम बढ़ने से हार्ट रेट बढ़ जाता है, राइट, बट उतना परफ्यूजन कार्डियक टिश्यूज को नहीं मिल पाता है। सो क्या होता रहता है, धीरे धीरे कार्डियक टिश्यू क्या होता रहता है, इस्कीमिक होता रहता है, राइट, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम होता रहेगा, हार्ट रेट बढ़ती रहेगी। इवन आफ्टर एमआई कंडीशन, एमआई के बाद क्या होगा, एमआई क्या होता है, मायोकार्डियल इंफेक्शन सीरियस में हो चुका है ना, क्या होता है, एक पार्ट ऑफ वो काम नहीं कर रहा है ना, हार्ट मसल काम नहीं कर रहे, सो क्या होगा, नेक्रोसिस होगा। उससे क्या होगा, अगर उस टाइम पे मैंने हार्ट रेट बढ़ा दी तो क्या होगा, वो तो काम वैसे नहीं कर रहा है ना, जिसको दूसरे वालों को भी जो बाकी सारे कंपनसेट कर रहे थे, अदर मसल्स व्हिच वर हेल्दी, दे वर कंपनसेटिंग the this lack of stroke volume that happened because of the affected part of muscle, तो उनको भी ब्लड सप्लाई धीरे धीरे कम होता रहेगा, राइट। सो वी डू नॉट इंक्रीज द हार्ट रेट, है ना, सिंपैथेटिक ड्रग नहीं देते हैं हम, राइट, रादर हम क्या देते हैं, डिजिटालिस डिटॉक्सिन। क्यों देते हैं, वो क्या करता है, सोडियम पोटेशियम पंप को बंद करेगा, और वही सेम चीज क्या बंद कर देगी, सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम, है ना। सो कैल्शियम बाहर सेल्स के बाहर नहीं जा पाता है, उसके वजह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है विदाउट इंक्रीजिंग द हार्ट रेट, है ना। सो उसके वजह से आपका स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ता है, बट विदाउट इंक्रीजिंग द हार्ट रेट। एनीवेज, चलो एथलीट्स में क्या क्या हो रहा है चेंजेस देखो, हार्ट रेट कम हो रही है क्योंकि वेगल टोन हाई थी, एंड देन स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होता है, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, राइट, up to 30 liters per minute, 5 to 6 times more increase than the untrained individual, ठीक है। untrained person में mainly it is increasing because of the heart rate, ठीक है, but heart rate का एक लिमिट होता है, and stroke volume का लिमिट हमें untrained person में is much lower than the trained person. Then optimal blood flow distribution, lesser increase in the BP, जितना untrained person में BP increase होगा उतना high उनमें increase नहीं होगा क्योंकि उनकी वेगल टोन हाई है, right. Then increase in the lung capacities, higher VO2 max and better endurance. ये तो आप सोच के भी लिख सकते हो, right. Applied aspect क्या है, physioclinical significance, first is aerobic exercise training. See, there are two types of hypertrophy. One hypertrophy में क्या होगा, lumen भी increase होगा and muscular size भी बढ़ेगा। एक हाइपरट्रॉफी में ल्यूमन की साइज कम होगी एंड मसल की साइज बढ़ेगी, ठीक है। सो सी केयरफुली ओवर हियर, व्हेन वी डू एरोबिक एक्सरसाइजेस, ल्यूमन साइज इज गोइंग टू इंक्रीज। ल्यूमन मतलब क्या होता है, जो बीच वाला स्पेस है जहां पे ब्लड फिल हो रहा था, राइट। सो वो साइज इंक्रीज हो गया एंड वॉल थिकनेस इज आल्सो गोइंग टू इंक्रीज, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द वेंट्रिकुलर वॉल्यूम, दैट इज गुड थिंग। बट व्हेन वी डू intense exercises, anaerobic exercises या isometric exercises, in that wall thickness तो increase होती है but lumen size actually decreases, ठीक है। अगर decrease होगा तो प्रॉब्लम क्या है, फिलिंग कम होगी तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, राइट। नाउ see, when that increases the chances of diastolic failure and obstructive hypertrophic cardiomyopathy. क्या मतलब हुआ इसका, डायस्टोलिक फेलियर का क्या मतलब हुआ, देखो लूमेन कम हुआ है ना, लूमेन कम हुआ मतलब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम दैट डिक्रीजेस, है ना। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो हार्ट क्या ट्राई करेगा, कंपनसेट करेगा किससे, हार्ट रेट से
कार्डियक आउटपुट तो बढ़ाना है ही ना, ऑक्सीजन की नीड तो है ही, कार्डियक आउटपुट बढ़ाना है, बट हम स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि लूमेन छोटा है। अब क्या बढ़ाना पड़ेगा? हार्ट रेट बढ़ानी पड़ेगी। क्या कम हो जाएगा? डायस्टोलिक फिलिंग टाइम कम हो जाएगा। डायस्टोलिक फिलिंग टाइम कम हो जाएगा तो जो ब्लड परफ्यूजन जा रहा था कोरोनरी वेसल्स के थ्रू कार्डियक मायोसाइट्स को, वो कम हो गया, है ना, तो उनकी पावर वैसे ही डिक्रीज हो जाएगी, राइट। एंड ये बहुत देर तक प्रोलॉन्ग होता रहा तो अल्टीमेटली द हार्ट इज गोइंग टू गो इन द फेलियर व्हिच इज नोन एज डायस्टोलिक फेलियर। ऑब्स्ट्रक्टिव हाइपरट्रोफिक कार्डियक मायोपैथी क्या होता है? इट्स एक्ट एज ऑब्स्ट्रक्टिव, क्यों? क्योंकि फर्दर ऑब्स्ट्रक्शन तो है नहीं, बट टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, दैट मे एक्ट एज ऑब्स्ट्रक्शन ना, है ना, आफ्टर लोड इंक्रीज हो गया, so that's why we call it as obstructive hypertrophic cardiomyopathy. Now then the most common cause of sudden cardiac death in athletes is hypertrophic cardiomyopathy. So जिनमें भी हाइपरटेंशन के पेशेंट्स होते हैं एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस के पेशेंट होते हैं, उनमें हम मना करते हैं किसके लिए? आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस प्लांक करने के लिए, या जो भी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस होती है जिसमें कंटिन्यूअस एक पोज में रहना है, ठीक है, उसके लिए हम मना करते हैं बिकॉज दैट इंक्रीजेस द लोड ऑन द हार्ट। ऑलरेडी उनका हार्ट पुअर है, राइट, वीक है, राइट, उसको हम और स्ट्रेस नहीं डाल सकते। सो दैट्स व्हाई वी आस्क देम टू डू आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस, ठीक है, ओके। So already increase after load during the high peripheral resistance. Mild to moderate isotonic exercises करने के लिए बोलते हैं, which are recommended in the management of hypertension and CAD. CAD क्या है? Coronary artery diseases. ठीक है? That increases the left ventricular volume and contractility and decreases the peripheral vascular resistance. क्यों? Isotonic exercises में क्या होता है vessels को? Dilate करती है, right? Okay. So cardiac efficiency test, नाम पूछना है, एटलीस्ट नाम याद रख लो, ठीक है, which are much important, है ना। पहला तो है बाइसिकल ergometry and treadmill test, ये दोनों तो आपको आने ही चाहिए, ठीक है। So responses to the steady state exercises, requirement during the exercises are met by the changes in the cardiorespiratory mechanisms। छोड़ दो इसको। पैरामीटर्स कौन कौन से, इसके एफिशिएंसी चेक करने के लिए कौन कौन सा पैरामीटर्स चेक करते हो? देखो, जो भी आपका मैक्सिमम कैपेसिटी होगा वो तो स्टेडी स्टेट में ही चेक करोगे आप, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? मैक्सिमम एक्सरसाइज करवाते हैं जितना भी बंदे का कैपेसिटी है। वंस इट रीचेस टू द स्टेडी स्टेट, फिर हम सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, या मेजर करना या रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं, राइट। सो व्हिच पैरामीटर्स वी आर गोइंग टू टेक इनटू कंसीडरेशन? हम हार्ट के लिए लेंगे बीपी एंड हार्ट रेट, राइट, एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम का लेंगे हम रेस्पिरेटरी रेट एंड ऑक्सीजन कंजम्पशन पर मिनट, है ना। When this is going to be taken? In which stage? Stage 3, है ना, steady state वाले एक्सरसाइज में, ठीक है। So क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पे क्या है, जितना डिमांड थी उतना सप्लाई पहुंच रहा है, ठीक है, मैक्सिमम सप्लाई इज रीच्ड, ठीक है। दो टेस्ट में बताया, ट्रेडमिल टेस्ट एंड बाइसिकल ergometry, थ्रू दैट वी आर गोइंग टू मेजर इट, ओके। टू एंगेज लार्ज मसल ग्रुप मैक्सिमली एंड टू मेंटेन नोन पावर आउटपुट, करते क्या है, बेसिकली हमारा एम क्या है वो लिखा हुआ है, राइट। सो मैक्सिमम इन सारे एक्सरसाइज में ट्रेडमिल और दिस बाइसिकल ergometry, यही एक्सरसाइजेस क्यों चूज की हुई है? बिकॉज बहुत सारे मसल्स उसमें एक्टिवेट हो रहे हैं, राइट, लार्ज ग्रुप ऑफ मसल्स आर गोइंग टू गेट एक्टिवेटेड एंड हमें नोन पावर आउटपुट मिलता है। सो दिस इज समथिंग नोन एज बाइसिकल ergometry। हमारे लैब में जो रखी हुई है ना, उसका पुराना मॉडल रखा हुआ है, राइट। उसमें क्या होता है, एक बाइसिकल होती है जिसमें आप रेजिस्टेंस एंड रेप्स दोनों मैनेज कर सकते हो, है ना। रेजिस्टेंस होता है कि इतने केजी आप अटैच कर सकते हो, 1 kg, 2 kg, 3 kg, तो पेडल में वो रेजिस्टेंस आ जाता है, ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस चेनिंग की तरह भी एक्ट करता है। एंड रेजिस्टेंस ना देके देयर इज अ काउंटर, जितना रेप्स, जितनी बार वो पेडल मूव होता है, उसका व्हील मूव होता है, उतने रेप्स भी हम काउंट कर सकते हैं, उसमें एक मीटर लगा होता है। आई शो यू विद द लैब, ठीक है। सो क्या करते हैं, बाइसिकल है, हम पेडल करने के लिए बोलेंगे पेशेंट को या सब्जेक्ट को, एंड ये सारी चीजें हम रिकॉर्ड करेंगे। वंस स्टेडी स्टेट इज रीच्ड, ऑक्सीजन कंजम्पशन इज मेजर्ड बाय द स्पायरोमेट्री। तो सारा चीज हम ऑलरेडी अटैच करके रखते हैं, राइट, एंड मॉनिटर पे सारा मेजर करते रहते हैं। देन ट्रेडमिल टेस्ट में क्या करेंगे? ट्रेडमिल तो आपको सबको पता है ना, कैसी दिखती है, राइट, पूरा नहीं दिखाया हुआ, बट ट्रेडमिल ऐसे, ट्रेडमिल पे हम अगेन सारी चीजें हम क्या करेंगे, उसको
ऑलरेडी अटैच करके रखेंगे, सच एज ECG, लीड्स एंड इवन द मास्क, राइट? सो अगर ऑक्सीजन कंजम्पशन मेजर करना हुआ तो, राइट? देन ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस टेस्ट, एक्सरसाइज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। स्ट्रेस टेस्ट आपने एक हाइपरटेंसिव के पेशेंट्स में या जिसको एंजाइना डिटेक्ट करना है उसमें पढ़ा होगा, ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं। क्या होता है वो? आपने एक वर्ड सुना होगा, एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग, है ना? एंड वन इज ट्रेडमिल टेस्ट, ठीक है? एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग में क्या करते हैं? 24 आवर्स की बीपी मॉनिटर करते हैं, राइट? एंड स्ट्रेस टेस्ट में क्या करते हैं? क्या होता है कि जब कंप्लीट ऑब्लिटरेशन नहीं होता, जैसे आप लोगों ने अभी बताया था कि जो करोनरी परफ्यूजन होता है, एंजाइना इज डिफरेंट एंड एमआई इज डिफरेंट। एमआई में नेक्रोसिस हो चुका है, एंजाइना कैसे डिफरेंट है उससे? वहां पे इस्कीमिया हो रहा है, अभी तक नेक्रोसिस कंप्लीट नहीं है, राइट? जब वो स्ट्रेस में जाएगा तो वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, राइट? डायस्टोलिक टाइम कम हो रहा है तो करोनरी परफ्यूजन भी कम हो जाएगा, है ना? नैरो वेसल जब हो जाती है, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है, किसमें? करोनरी वेसल्स में। तो क्या होगा, जब भी वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में जाएगा तो ये नैरोइंग हो जाएगी, राइट? नैरोइंग हो जाएगी प्लस डायस्टोलिक टाइम कम हो जाएगा, तब उसको पेन होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जब भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में वो जाएगा तब ये नैरोइंग और बढ़ जाएगी, राइट? डिमांड सप्लाई का चेंज आना शुरू हो जाएगा, है ना? जो कि रेस्टिंग कंडीशन में नहीं होता है, राइट? रेस्टिंग कंडीशन में आराम से वो कंपनसेट कर पा रहा है, बट जब भी पेशेंट आपके पास आएगा क्या करके, एंजाइना वाला, कि जब भी मैं सीढ़ियां चढ़ता हूँ या जब भी मैं दौड़ने की कोशिश करता हूँ या कोई भी वो स्ट्रेसफुल काम करेगा, तब क्या होगा? उसका सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होगा एंड तब उसको पेन होगा, राइट? तब आप ये स्ट्रेस टेस्ट करते हो, राइट? क्योंकि नॉर्मली आप अगर उसका सारा चेकअप करोगे, हार्ट रेट बीपी तो नॉर्मल है, बट उस टाइम पे, जिस टाइम पे उसको स्ट्रेस देते हैं, तब क्या चेंजेस आते हैं वो हम यहाँ पे चेक करें, राइट? Now, it provides the information on how the heart responds to the exertion. जब भी वो exert करता है तो हार्ट कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है वो ये बताते हैं. Involves walking on the treadmill and increasing levels of difficulty while ECG, blood pressure and heart rate are monitored. ठीक है, ये दो टेस्ट आपको डिटेल में पढ़ाए जाएंगे, right? When you are going to learn the effect of exercise on the blood pressure. ठीक है? So अभी के लिए फिलहाल दो नाम याद रख लो, क्योंकि I am going to teach you this exercise वाला पूरा पार्ट, है ना? So I am going to ask you in next class, ठीक है? आपकी प्रैक्टिकल्स क्लास. हार्वर्ड स्टेप टेस्ट एक ही स्टेप होती है, उसमें बार-बार हम बोलते हैं कि चढ़ो फिर उतरो, चढ़ो उतरो, ठीक है? ऐसा 5 मिनट तक करते रहना है, ठीक है? मेट्रोनोम चलता रहेगा. मेट्रोनोम एक डिवाइस होती है जिससे आवाज आती रहती है ना? टेक 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 पर मिनट कितनी बीट्स आनी है वो आप डिसाइड करते हो, उसमें सेटिंग्स होती है, राइट? तो ये हम 5 मिनट के लिए करवाते हैं पेशेंट को, राइट, के सब्जेक्ट को, एंड देन वी आर गोइंग टू चेक ऑल हिज बीपी, हार्ट रेट, जो भी हमारे पास अवेलेबिलिटी है, ठीक है? सेम चीज अगर हम 2 स्टेप्स लेके चलते हैं तो इसको बोलते हैं मास्टर्स 2 स्टेप टेस्ट, ठीक है? और आप स्पॉट जॉगिंग भी कर सकते हैं, राइट? क्या देखते हैं इससे हम? इफेक्ट ऑफ मॉडरेट आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस ऑन द ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट. मॉडरेट एक्सरसाइज से कैसे डिसाइड करोगे? मॉडरेट कब बोलूंगी मैं? 60%. यस, राइट. ऑक्सीजन कंजम्पशन या हार्ट रेट? हार्ट रेट, है ना? कैसे निकाला 60% ऑफ मैक्सिमम? गुड, 220 माइनस एज. 220 माइनस एज आपको मैक्सिमम हार्ट रेट मिल जाएगा, राइट? और मैक्सिमम का 60%, शी इज एब्सोल्युटली राइट. उसका आप 60% लोगे तो दैट विल बी काउंटेड एज अ मॉडरेट एक्सरसाइज, है ना? ये सारा आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिकल में, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? देन पोस्ट एंड प्री एक्सरसाइजेस वैल्यू आर रिकॉर्डेड. बेसल ब्लड प्रेशर आप ऑलरेडी मेजर करके रखते हो, राइट? एंड एक्सरसाइज के बाद वाला आप देखते हो, है ना? So that will give you the cardiac efficiency index. ठीक है, that's all for today's class. Okay. Any doubt?